Okay, no problem. Now let us start. Refraction of light. What is refraction of light? I think it is clear. Uh, Video and audio both are clear. It is okay? Yes, sir. Yes. Okay. Refraction of light. What is refraction of light? What we have studied, reflection. Reflection in reflection, this is a bouncing back of light, bouncing back of light in a in that medium. Okay, bouncing back of light in that medium is called reflection. But here, when a light travels from one medium, medium number one here, medium number one, that is medium number two. When the light travels from one medium to another medium, okay, what happens? It will bend. It will bend. This is the normal. This is the normal. If this is rarer and this is the denser, rarer and denser, then what happen? What will happen? If the ray is going from rarer to denser, then it will bend toward the normal. It will bend. It will bend toward the normal. Okay. If the direction is reversed, that means it is denser and it is rare, then it will be away from the normal. The path is this. The path of the ray is this, but it is deviated by some angle. When the light travels from one medium to another medium and the path is deviated, then this is known as a refraction of light. Refraction of light. Okay. Also, you can write the definition. Write down the definition. Write down the definition. Refraction of light is the phenomenon of change in the path. The phenomenon of the change in the path of light. Change in the path of light as it passes from one transparent medium to another. From as it passes from one transparent medium to another. One transparent medium to another. This is called refraction of light. Okay. It also have two laws like reflection. Uh, write down. Write down. Laws of refraction. Laws of refraction of light. Heading. Laws of refraction of light. Number one. First law. Yeah, what you will see. Incident ray. Write down. Incident ray, refracted ray, incident ray, refracted ray, and the normal, and the normal all lie in the same plane. All lie in the same plane. Second one, second law, that is the ratio of sine of the angle, the ratio of the sine of the angle, the ratio of sine of the angle of incidence and
incidence and the sign of angle of refraction, the sign of angle of refraction is constant for a given pair of media, is constant for a given pair of media. Means sine I upon sine R is equals to mu1 2. ये mu क्या होता है? Mu is the refractive index. अभी हम लोग पढ़ेंगे what is refractive index. इतना याद रख लेना अभी. Sin I upon sin R is equals to mu1 2 refractive index of the medium 2 with respect to 1. That is called refractive index, and this is the law or second law of refraction. Okay. सेकेंड लॉ में उसमें क्या रिफ्लेक्शन में क्या था कि इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आई इज इक्वल टू आर, बट हियर आई इज नॉट इक्वल टू आर. ओके, इट मे वेरी, इट डिपेंड्स ऑन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडिया. It depends on the refractive index of the media. What is refractive index? Let us start. Write down heading refractive index. पढ़ चुके हो 10th क्लास में आप लोग. What is refractive index? Write down. Refractive index. Generally, it is denoted by mu, or sometimes in NCERT it is denoted by small n. Mu or small n. Okay. Mu is equals to refractive index is equals to, आप लिख सकते हो फॉर्मूला पहले लिख लो, C upon V. C is the speed of light in vacuum and speed of light. V is the speed of light in a medium. In a medium. Speed of light in a medium and speed of light in vacuum. It is the ratio C upon V, not V upon C. It is C upon V. Okay. C upon V. Refractive index is equals to C upon V, where speed of light in vacuum and V is the speed of light in a medium, in any medium. मान लो हमको वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो क्या करेंगे हम, स्पीड ऑफ लाइट इन द वैक्यूम, जो सबको जानते हैं सी की वैल्यू जो होती है अप्रोक्सीमेटली 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है. जब लाइट किसी मीडियम से पास होती है तो उसकी स्पीड कुछ कम हो जाती है. इसका मतलब क्या हुआ कि स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, जब हम वाटर में मेजर करते हैं स्पीड ऑफ लाइट तो उससे कुछ कम आ जाती है, यानी कि उससे कुछ कम हो जाए, कुछ कम होगी, कितनी भी होगी कम, तो ऊपर वाली न्यूमेरिक वैल्यू इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर. दैट मींस स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में सबसे ज्यादा होती है, इससे ज्यादा स्पीड ऑफ लाइट नहीं हो सकती है. दैट मींस न्यूमरेटर इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर. देन दैट मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स is greater than 1 or equal to 1. ये पॉइंट भी आप लिख लेना, mu is always equals to 1 or greater than 1. When it is equals to 1, when we measure the refractive index of the medium of the space. C upon C means refractive index of the vacuum is 1, and when we will try to calculate the refractive index of any medium, then speed will be lower than C and it will be greater than 1. Okay. Now अब आगे चलते हैं हम लोग, इसमें थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं. पहले इसमें लिख लो डेफिनेशन. व्हाट इज द definition of refractive index? Write down. The refractive index of a medium
the refractive index of a medium for a light of given for light of given wavelength or the light of given wavelength may be defined as may be defined as the ratio of the speed of light in vacuum ratio of the speed of light in vacuum speed of light in the vacuum to the speed of light in that medium to the speed of light in that medium. Hmm. Write down a question. Write down a question. A ray of light, a ray of light of frequency it is given. I will write of frequency, ray of light of frequency 5 into 10 to the power 14. 5 into 10 to the power 14 hertz. Very high energy. 5 into 10 to the power 14 hertz is passed through a liquid. Is passed through a liquid. The wavelength of the light measured inside the liquid is inside the liquid की अगर हम बात करें तो उसमें वेवलेंथ जो आ जाती है दैट इज wavelength is equals to 450 10 to the power minus 19 meter. The wavelength in that medium is 450 10 to the power minus 9 meter. Means wavelength is very less. Calculate refractive index of the liquid. We have to find mu. Mu is equals to what? We know that mu is equals to, if we talk about solution, then mu is equals to C upon V. You know that what is C? C is fixed, that is 3 into 10 to the power 8 meter per second, or simply 3 into 10 power 8 if we write in the standard. Okay. We know that what is velocity? Velocity is equals to frequency into wavelength. Velocity of light in any medium, frequency into wavelength, you know very well. Frequency multiplied by wavelength, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 5 into 10 to the power 14 multiplied by 450 multiplied by 10 to the power minus 9. इसको सॉल्व कर लेना. इसको सॉल्व करने के बाद आएगा, ठीक है. आंसर इज वेरी गुड. आंसर इज 1.33. Ashutosh Singh. Yes. What is the unit? Unit of mu. Ashutosh Singh, listening. What is the unit of mu? No reply. Anyone? Anyone who can tell me what is the unit of mu? It is unitless. Okay, very good. Because it is meter per second upon meter per second. हाँ, ये भी हमारे मीटर पर सेकंड में होगा और ये भी मीटर पर सेकंड में होगा. तो मीटर पर सेकंड कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका कुछ भी नहीं बचेगा. मीन्स 1. दैट इज यूनिटलेस. नो नहीं लिखेंगे, यूनिटलेस लिखेंगे. हाँ. ओके ओके. आशुतोष बहुत देर में आए तुम, ठीक है.
कोई बात नहीं। इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस भी इस पे करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस भी इसमें दिए गए हैं। इसमें बात करते हैं हम लोग, लेट अस टॉक अबाउट some particular cases like write down real and apparent depth, real and apparent depth applications की बात करेंगे हम, what is the application of refraction। तो इस पे एप्लीकेशन पे आ जाता है हमारा एक फर्स्ट पॉइंट राइट डाउन, दैट इज रियल एंड अपरेंट डेप्थ, रियल एंड अपरेंट डेप्थ। एक चीज याद रखना कि रियल और अपरेंट डेप्थ का मतलब होता है जब हम प्याले में पानी हो, ग्लास में वाटर हो, व्हेन यू डिप अ पेंसिल, क्या देखोगे कि यहाँ से इस तरह से बेंड ऐसे दिखती है। देखा है आपने कभी? तो देखा होगा कि अगर हम बेंड कर दें इस तरह से, सॉरी पेंसिल को अगर हम वाटर में डिप करते हैं तो ये थोड़ा सा बेंड हमको ऐसे ऊपर की तरफ नजर आती है। देखा है आपने कभी? नहीं देखा होगा तो बता के देख लेना। अरे किए हो कि नहीं? सो रहे हो? ठीक, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये अपरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ का कंसेप्ट कहाँ से आता है, कैसे आता है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे थ्रू रिफ्रैक्शन। ओके, नाउ देखोगे ध्यान से, देखिए कि देखा है। चलो ओके, क्या होता है कि जब हम एक ये टैंक है, टैंक, the water is filled up to that height, ये इसको हम बोलते हैं रियल डेप्थ। जहां पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड हियर, कोई ऑब्जेक्ट है, तो क्या होता है कि ये दिस इज द रियल डेप्थ की बात करें हम, तो ये हमारा रियल डेप्थ आ जाएगा। रेज यहां से चलेंगे ऐसे, फॉर एग्जांपल एक रे यहां से चल रही है, जा रही है, इसको यहाँ पे चले जाना चाहिए था। थोड़ा सा बड़ा फिगर बनना आप लोग अपने कॉपी पे बनाते रहो साथ साथ, इसको यहाँ सीधे चले जाना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ, बिकॉज इट इज वाटर, इट इज वाटर and this is air, this is denser and this is rarer, this is rarer, ray is going from denser to rarer, it will bend away from the normal। यहां से अगर हम बात करें, दिख रहा होगा आई थिंक, थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है मुझे, यहाँ से दिस इज द नॉर्मल एंड दिस इज द, यहाँ पे रे चले जाना था तो इसको, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गई कि ये बेंड हो जाती है। मैं यहाँ मिटा देता हूँ इसको, ये अवे फ्रॉम द, अवे फ्रॉम द, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, द रेज इज बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। फिर क्या होता है कि इसमें अगर देखा जाए ध्यान से, तो यहाँ पे कोई पर्सन इसको देख रहा है, यहाँ पे कोई पर्सन इसको देख रहा है, मुझे आंख बनाना नहीं आता है, आप लोग अच्छी बना लेते हो, यहाँ से कोई देख रहा है। एक बात यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर कर लेना, क्या कि जैसे लाइट, लाइट हमारे आंख में आती है, हमको क्या दिखेगा, इमेज हमारे सामने, जहां से रे आ रही है, नो मैटर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, अगर रेज ऐसे बेंड होके आ रही है मेरी तरफ, तो मुझे लगेगा कि ऑब्जेक्ट कहाँ है, सामने। तो यहाँ पे जो रेज आ रही है तो इसको क्या लगेगा कि ऑब्जेक्ट कहाँ है, यहाँ पे, क्योंकि ये भी एक रे है ऊपर जा रही है, और ये भी एक रे है, या दोनों कहाँ कट कर रही है, इस पॉइंट पे, ये और ये वाली। इसलिए अब इनको क्या लगेगा कि ये जो रे है
जो ऑब्जेक्ट है, ये वाला ऑब्जेक्ट, ये यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर दिखाई देगा, थोड़ा सा ऊपर हमको दिखाई देगा, इसलिए हम क्या बोलेंगे कि यहाँ से ये हमारी हो जाएगी अपरेंट डेप्थ। दिस इज कॉल्ड अपरेंट डेप्थ। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी दैट इज अपरेंट डेप्थ, एंड यहाँ से यहाँ तक की जो है वो होगी, उसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे रियल डेप्थ। ये बात समझ में आ रही होगी आई थिंक। ये बात अगर समझ में आ रही, फिगर आप बनाते रहना, उसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं रियल डेप्थ एंड अपरेंट डेप्थ। यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था अभी, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू टू वन। एक चीज इसको इस तरह से याद रखना, इसको साइन आई, म्यू आई साइन आई इज इक्वल टू म्यू आर साइन आर, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू म्यू आर अपॉन, इसे साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू आर अपॉन म्यू आई। म्यू सेकेंड यानी कि म्यू ऑफ सेकेंड मीडियम अपॉन म्यू ऑफ फर्स्ट मीडियम, म्यू ऑफ सेकेंड मीडियम ऑफ म्यू ऑफ फर्स्ट मीडियम, ये हो जाएगा हमारा म्यू टू वन हो जाएगा। यही वही वाली बात है, मुझे कैसे याद रहता है, मुझे इस तरह से भूल जाता है कभी कभी ऊपर नीचे कौन सा होगा, तो मुझे याद रहता है स्नेल्स लॉ इसको कहते हैं। दिस इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ। म्यू आई साइन आई इज इक्वल टू म्यू आर साइन आर, म्यू आई साइन आई इज इक्वल टू म्यू आर साइन आर। तो यहाँ पे मैं रखूंगा म्यू आई, म्यू आई, म्यू आई मतलब यहाँ से चल रहा है यहाँ की तरफ, तो इसमें रखेंगे म्यू डब्ल्यू, यहाँ से चल रहा है ना इंसिडेंस, तो म्यू डब्ल्यू इंटू साइन आई इज इक्वल टू म्यू एयर इंटू साइन आर। अब बात यहाँ पे आती है कि व्हाट इज आई एंड व्हाट इज आर, व्हाट इज आई एंड व्हाट इज आर। तो यहाँ पे बात करते हैं इंसिडेंस एंगल की। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ से नॉर्मल से जो एंगल बना रहा है, ये वाला है, बना लेना आप लोग भी, नॉर्मल से जो एंगल बना रहा है इस इज कॉल्ड आर, और ये अगर आर है तो ये भी आर हो जाएगा, दिस इज ऑल्सो आर। यहां से बना रहा था आई, नॉर्मल इंसिडेंट रे के बीच में बना रहा है आई, तो ये वाला एंगल भी हो जाएगा आई, दोनों एंगल आई हो जाएंगे, एक एंगल आ रहा है। इसमें हम नेमिंग कर देते हैं, दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट, एंड दिस पॉइंट इज ओ, एंड दिस इज इमेज, तो इसको हम बोल लेते हैं आई, ये ऑब्जेक्ट था तो ओ, इमेज थी तो आई, ये ए पॉइंट है और ये वाला जो पॉइंट है दैट इज बी, इसको बना लेना, दैट इज बी पॉइंट, ए पॉइंट एंड बी पॉइंट। यहाँ पे देखेंगे साइन आई अपॉन साइन आर, यहाँ पे हो जाएगा साइन आई अपॉन साइन आर, म्यू ए अपॉन म्यू डब्ल्यू, साइन आई अपॉन साइन आर। साइन आई को क्या लिख सकते हैं, साइन आई, इसको अगर देखा जाए साइन आई, साइन के लिए क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ए बी अपॉन बी ओ, ये हो जाएगा ए बी अपॉन बी ओ, एंड साइन आर इसके लिए ए बी अपॉन बी आई, ए बी अपॉन बी आई, नोट करते रहना, ए बी अपॉन बी आई, साइन आर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। यहाँ पे हम देखेंगे तो ए बी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, बी आई अपॉन बी आई, ये रिवर्स हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, बी आई अपॉन बी ओ, बी आई अपॉन बी ओ। ओके,
नोट हो गया, यस और नो? हो गया तो आगे चलते। यस, ओके, आगे चलते। देखो यहाँ पे क्या देखेंगे आप लोग कि जो बी आई है, बी आई, इसको थोड़ा सा अजम्पशन है, क्योंकि ये बहुत पास होता है, इसलिए बी आई और ए आई आपस में बराबर। बी आई इज अप्रोक्सीमेटली, लिखेंगे यहाँ पे, बी आई इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ए आई, एंड बी आई is approximately equals to AI and BO is approximately equals to A. ये assumption है, BO is approximately equals to A. BO जो कि यहाँ पे यूज हो रहा है is approximately equals to BO, that is approximately equals to AO. तो यहाँ पे हम लिख सकते थे, यहाँ पे इस पूरे के प्लेस पे यहाँ पे हम आगे लिख सकते थे, व्हाट आगे लिख सकते थे हम यहाँ पे एस को ऐसा भी लिख सकते हैं, म्यू ए अपॉन म्यू डब्ल्यू, म्यू ए अपॉन म्यू डब्ल्यू, इसको लिख सकते हैं हम दैट इज बी आई दैट इज ए आई, ए आई लिख दो यहाँ पे, या इसको हम लिख सकते हैं ए आई इज द अपरेंट डेप्थ, और यहाँ पे बी ओ के प्लेस पे ए ओ लिख सकते हैं, इट इज इसको लिख लेना यहाँ पे, this is apparent depth and this is real depth, AI and OI, real depth and apparent depth. This is the apparent depth and this is the real depth. इसको अगर हम माने एयर का अगर हम 1 मान लेते हैं तो 1 अपॉन म्यू ऑफ वाटर, तो ये फार्मूला है, इसको नोट कर लेना। दिस इज द फार्मूला फॉर द रियल डेप्थ एंड अपरेंट डेप्थ। रियल डेप्थ एंड अपरेंट डेप्थ, इसको ऐसे भी लिख सकते हो चाहो तो, म्यू ए अपॉन म्यू डब्ल्यू, इसको अपरेंट डेप्थ को हम एच डैश मान लेते हैं और रियल डेप्थ को हम एच मान लेते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर लेते हैं। फिर क्या बात आती है, ये नॉर्मल शिफ्ट कहते हैं इसको, नॉर्मल शिफ्ट, इसको हम बोलते हैं डी, लिख लो, दिस इज कॉल्ड डी, नॉर्मल शिफ्ट। लिखते रहना आप लोग, इसके नीचे लिख लेना नॉर्मल शिफ्ट, कितना ये ऊपर गया, नॉर्मल शिफ्ट इज इक्वल टू डी, एंड डी इज इक्वल टू हम क्या लिखते हैं, एच माइनस एच डैश, एच माइनस एच डैश, एच को तो एच लिखेंगे, एच डैश को क्या लिखेंगे, एच टाइम्स म्यू ए अपॉन म्यू डब्ल्यू, एच को अगर हम इसे इधर रिप्लेस कर दे तो म्यू ए अपॉन म्यू डब्ल्यू, एच टाइम्स यहाँ पे लिख सकते हैं एच टाइम्स 1 माइनस म्यू ए अपॉन म्यू डब्ल्यू, एच टाइम्स 1 माइनस म्यू ए अपॉन एच टाइम्स 1 माइनस म्यू ए अपॉन म्यू डब्ल्यू। अगर म्यू ए 1 हो जाएगा, एयर के लिए अगर हम 1 मान लेते हैं तो म्यू ए विल बी इक्वल टू 1। यू कैन आल्सो टेक स्क्रीनशॉट और आइदर यू कैन राइट। तो दिक्कत है किसी को, अपरेंट डेप्थ रियल डेप्थ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हाँ बात वही है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस चीज का, ये तो एक वो केस आ गया ना कि हमने एयर को 1 मान लिया, आशुतोष जब एयर को 1 मान लेंगे, अदरवाइज यही फार्मूला है, ये फार्मूला, अगर एयर को 1 मान लोगे तो रियल डेप्थ इक्वल्स टू अपरेंट डेप्थ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। जिस मीडियम में हमने उस मटेरियल को रखा हुआ है या जिस ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है, ये तो वो जो तुम बता रहे हो वो एक स्पेशल केस हो सकता है, लेकिन ये एक जनरल केस, इसको याद रखोगे, इससे आसानी से आप लोगों को समझ में। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं नॉर्मल शिफ्टिंग की, तो नॉर्मल शिफ्ट इज इक्वल टू एच टाइम्स, एच इज द हाइट ऑफ, इसको बोलते हैं हम रियल डेप्थ या रियल हाइट ऑफ द लिक्विड, एच इज इक्वल टू सॉरी डी इज इक्वल टू एच टाइम्स 1 माइनस म्यू ए अपॉन म्यू डब्ल्यू। यहाँ पे भी जनरल स्पेशल केस में जब एयर ले लेते हैं तो in place of mu a you can also write 1, okay।
आशुतोष सिंह, इट इज क्लियर ना? हाँ ठीक है, अगर आपको कोई और प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो, एनीवन। आशुतोष सिंह क्लियर? ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा इसमें कुछ क्वेश्चंस भी कर लेते हैं, रियल डेप्थ और अपर इन डेप्थ की क्वेश्चंस भी इसमें हैं, ऐसा नहीं है, कर सकते हो चाहो तो। राइट डाउन, मैं आज क्वेश्चन भेज दूंगा कुछ न्यूमेरिकल्स उस पे, इस इन सब पे बेस्ड सर यू कैन कमेंट। नॉर्मल शिफ्ट में टी भी है। नॉर्मल शिफ्ट में टी का यूज कर सकते हैं, टी जो कि बुक में, साइड बुक में दिया हुआ है वो टी दिया हुआ है, टी इज द थिकनेस ऑफ द मटेरियल, मतलब मीडियम। ये एच जो मैंने लिया है वहां पे टी लिया हुआ, ये रियल डेप्थ को या रियल डिप्थ को मैंने एच ले लिया है ना, काफी कोई दिक्कत नहीं है। तो चाहो तो यहाँ पे रियल डेप्थ को ओके आप सर। टी ले लोगे तो यहाँ पे डी इक्वल्स टू टी टाइम्स 1 माइनस यू अपॉन यू डब्ल्यू होता है। यस यस ओके। एक क्वेश्चन लिख लो, थोड़ा सा क्वेश्चन लिखाने में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन फिर भी क्या करोगे, लिखो, क्वेश्चन तो करना ही पड़ेगा, आपके पास बुक नहीं होगी तो लिख लो क्वेश्चन एक। राइट डाउन अ क्वेश्चन, अ मार्क इज मेड ऑन द बॉटम ऑफ अ बीकर, यही वाला क्वेश्चन है, इसी तरह का क्वेश्चन है। अ मार्क is made on the bottom of a beaker and a microscope and a microscope and a microscope is raised through 1.5 centimeter and a microscope is raised through 1.5 centimeter full stop. To what height water must be poured? To what height? To what height water must be poured into the beaker to bring the mark again into focus. Again into focus. Mu is equals to, write down mu means refractive index is equals to, it is given 4/3. कितनी हाइट तक इसको प्योर किया जाए, कितनी हाइट तक इसको प्योर किया जाए, दैट मीन्स वी हैव टू कैलकुलेट एच। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, एच हमको कैलकुलेट करना है, हाँ? और डी दिया हुआ है, डी इज 1.5 और म्यू भी दिया हुआ है, म्यू इज 4/3। करो, खुद से करो, करके बताओ हमको आंसर कितना आ रहा है। एच वी हैव टू फाइंड, डी इज गिवन दैट इज 1.5, देख लेना सेंटीमीटर में है शायद, सेंटीमीटर, and mu is also given that is 4/3, then you can easily calculate what is the answer. You can write the answers. Very good, 6 centimeter, very good, 6 centimeter। कर लेना भाई, करके बताना, नहीं तो एस एल अरोड़ा से ही क्वेश्चन बोल रहा हूँ मैं, एस एल अरोड़ा तुम लोगों के पास भी होगा तो फटाफट आंसर में बता देना, क्योंकि आंसर इसमें लिखा हुआ है ना। ठीक है, वैसे इजी क्वेश्चन था, 2 लाइन में हो जाता, मैं जानता हूँ की हो गए। ओके वेरी गुड, खुद से की हो, पता है, जानता हूँ, कर सकते हो। बाकी लोग नहीं खरीदो एस एल अरोड़ा, ओके कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करना। ठीक है, मैं क्वेश्चन इसमें भेज दूंगा एस एल अरोड़ा से, साइड बुक आपके पास अगर नहीं है तो मैं आपको क्वेश्चंस भेजता रहता हूँ, भेज दूंगा फिर से मैं, उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, अगर किसी प्रॉब्लम में अगर प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो, है ना।
रिकॉर्डिंग आपको दिख रही है क्या? किसी को रिकॉर्डिंग दिख रही है? ठीक है, अब ये रिकॉर्डेड लेक्चर है, अब इसको मैं अपलोड कर दूंगा, बल्कि ये अब ऑटोमेटिक अपलोड हो जाएगा, आप लोग इसको फिर से देख सकते हो। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो इसको आप फिर से एक्सेस कर सकते हो, इसी क्लासरूम में सेव रहेगा, आप इसको एक्सेस कर सकते हो फिर से, अगर कहीं कोई प्रॉब्लम होगी तो उसको आप देख सकते हो। हाँ, तो ये है।